Hello everyone, welcome on my YouTube channel Aradhyan's Tutorial Hub. Students, this is part 3 of chapter triangles, and here in this video you are going to watch solutions of exercise 7.2. So watch this video carefully. First question is, in an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O, join A to B. So this is an isosceles triangle ABC. Okay, here BC is this base of this triangle and AB is equal to AC. Here this side AB and AC both are equal because this is an isosceles triangle. The bisector of angle B and angle C, we are talking about these angles, angle B and angle C, and these are bisectors which intersect each other at point O. Okay, and now we are going to join A to O like this. Okay, so this is the complete diagram of this question. Isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. Here angle B and C both are bisected by bisector OB and OC, and now we have to show that OB is equal to OC. We have to prove these line segment OB and OC are equal, and second question is AO bisects A, and we have also proved that the line segment AO bisect angle A. Okay, so AB is equal to AC. Here AB is equal to AC, this is given. Students, to prove OB is equal to AC, we can prove these two bisectors equal by proving that this is a triangle BCO or OBC is an isosceles triangle. If we can prove this is an isosceles triangle, we can easily say these both two sides are equal, and to prove that we have to prove the angle OBC and OCB are equal. So we are going to prove that here angle B and angle C are equal. It is given in the question that angle B and angle C are equal because it is given that AB is equal to AC, and we know angles opposite to the equal sides are also equal because it is an isosceles triangle. So these two equal sides, the angles are B and C, and these two angles are also equal. Okay, and we can easily say the half of these angle will also be equal. अगर हम इन एंगल्स का हाफ करें तो वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा, क्योंकि जब एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे. और OBC एंड एंगल OCB, अब हमने हाफ ऑफ एंगल बी, देखिए एंगल बी का बाइसेक्टर कौन सा है, दिस बाइसेक्टर BO और OB, ये इसका बाइसेक्टर है. इट मींस ये इस एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. मींस OBC ये जो एंगल है वो क्या है, इस एंगल B का हाफ है, इसलिए हमने हाफ ऑफ एंगल B को क्या लिखा है, एंगल OBC. सिमिलरली हाफ ऑफ एंगल C we can replace half of angle C with angle OCB, क्योंकि इस C का जो हाफ होगा वो क्या होगा, OCB होगा. अब ये एंगल इक्वल है कौन से, ये देखिए ये वाले एंगल OBC एंड OCB, ये दोनों ही एंगल इक्वल हैं. अभी हमने कहा था इफ साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इसी चीज को हम जस्ट यहाँ अपोजिट कर देंगे. अगर एंगल्स इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, then we can easily say these sides OB and OC will be equal. Hence OB is equal to OC because sides opposite to the equal angles are equal.
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन, इसका फर्स्ट जो पार्ट था OB इक्वल टू OC, इसको हमने प्रूव कर दिया है इस मेथड से। एंड वी हैव टू प्रूव नाउ AO बाइसेक्ट एंगल A। इस एंगल A को बाइसेक्ट करने वाला AO है, इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको हम प्रूव कर सकते हैं अगर हम ये कहते हैं कि ये एंगल जो है कौन सा, OAB एंड एंगल OAC, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इट मींस AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू प्रूव OAB एंड OAC। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो फिर क्या होगा? इनकी जो भी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इट मींस ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। देन वी कैन इजीली से AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ओके, so watch the steps of solution. In triangle AOB and AOC, here we are going to compare these two triangles AOB and AOC. First point is AB is equal to AC. AB is equal to AC. First part is already given in the question that AB is equal to AC. Second thing is that AO is equal to AO. This side is also common between these two triangles. Okay, so this is common of AO. Next is OB is equal to OC, and we have already proved in first question, first part of this question. So by SSS, side congruency rule, triangle AOB congruent to triangle AOC. It means this angle OAB and OAC will also be equal by CPCT, corresponding parts of congruent triangle. तो यहां से हम कह सकते हैं AO is bisector of angle A और AO bisects angle A. Okay students, next question is, question second is, in triangle ABC, here this is the triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. AD is perpendicular bisector. Here there are two terms. Perpendicular means it makes 90-degree angle here, and also bisect BC. It also bisect BC means ये BC को क्या करेगा? bisect करेगा, टू इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेगा। कौन सा परपेंडिकुलर? AD. Show that angle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. अब हमें ये प्रूव करना है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB एंड AC इक्वल है। ओके, इसके लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स ADB एंड ADC. ओके, सो इन ट्राइंगल ABD and ACD, ABD, this is the triangle ABD and ACD. Okay, AD is equal to AD. This side AB is common in these two triangle. Okay, this is common R. Angle ABD is equal to angle ADC. Look here, ADB. Here AD is perpendicular on BC. It means this angle is of 90 degree. And again this angle is also 90 degree. So ADB and ADC are of 90 degree. So these two angles are equal. And next is BD is equal to CD. Because AD is bisector of this side BC. ये BC को bisect कर रहा है, हमने पहले ही देख लिया है. Okay. It means BD is equal to DC or CD. Here side angle side congruency rule इस पे लग जाएगा, SAS, and we can easily say triangle ABD congruent to triangle ACD. It means its corresponding parts will also be equal, or we can say AB is equal to AC. अब क्या होगा जब ये congruent है दोनों ट्राइंगल, तो इट मीन्स इनकी जो साइड है ये भी क्या होगी,
इक्वल होगी ए बी इज इक्वल टू ए सी। ओके, और ये साइड इक्वल है, इट मीन्स ये कौन सा ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. ABC एक isosceles triangle है और यहाँ पर जो equal sides हैं कौन सी हैं, AB and AC। यहाँ मेंशन है, देखिए altitudes are drawn to equal sides AC and AB। यहाँ पर ए बी एंड ए सी ये इक्वल साइड्स हैं और इनके ऊपर बी और सी से एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए गए हैं, ये परपेंडिकुलर सी हैं। ओके, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा और हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एल्टीट्यूड्स हैं मींस बी ई एंड सी एफ इक्वल होने चाहिए, हमें ऐसा प्रूव करना है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दो जो ट्राइंगल्स हैं, एक तो ए बी ई, इस ट्राइंगल को लेंगे एक तो हम, और एक ए सी एफ। इन दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी को हम चेक करेंगे। ओके, ये जो ट्राइंगल्स हैं ना, एक तो ये ए बी ई एंड ए सी एफ। एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ। बी ए ई ये वाला एंगल, ठीक है, एंड सी ए एफ अगेन ये वाला एंगल। इट मींस ये एंगल क्या है, इसमें कॉमन है, कॉमन एंगल। ओके, तो एक तो हमने एंगल प्रूव कर दिया ये वाला। नेक्स्ट ए ई बी, ए ई बी ये एंगल कितने का होगा, 90 का, क्योंकि बी ई क्या है, इस पर एल्टीट्यूड है, ये परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बन रहा है ये, ठीक है। तो ये एंगल कितने का हो गया, 90 का, राइट एंगल है ये। एंड ए एफ सी, और इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल जो है ए एफ सी, ये भी क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है ये। ओके, ये भी 90 का, ये भी 90 का, मीन्स ये भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। देखिए हमने टू एंगल्स तो इक्वल प्रूव कर दिए हैं, अब हमें एक साइड लेनी होगी, इक्वल करनी होगी, क्योंकि हमने जो भी कॉन्ग्रुएंसी के रूल देखे उसमें कम से कम एक साइड इक्वल होनी जरूरी है। ओके, नाउ ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब देखिए यहाँ पर ए बी और ए सी ये तो हमें गिवन है ऑलरेडी इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि इस आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या है, ये इक्वल साइड्स हैं ए बी एंड ए सी। तो ये हमें ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल को लगा सकते हैं। AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। और अगर ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इट मींस इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मींस ये जो साइड है BE एंड CF ये क्या होंगी, इक्वल होंगी बाय द रूल ऑफ CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यहां से हमने इजीली इसको प्रूव कर दिया है कि एल्टीट्यूड्स इक्वल लेंथ के। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ABC is a triangle in which altitudes BE and CF to sides AC and AB are equal। देखिए ये क्वेश्चन अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन थर्ड जो सॉल्व किया है कुछ उसका अपोजिट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में BE एंड CF ये क्या है, इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं। एल्टीट्यूड्स मींस 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इसके साथ, साइड्स के साथ, और ये ऑलरेडी इक्वल हमें दिए हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने इनको इक्वल प्रूव किया था, लेकिन यहाँ हमें ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है। शो दैट ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। अगेन हमें ABE एंड ACF की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करना है, बहुत इजीली हम कर सकते हैं। सेम वही एक एंगल A कॉमन है, 90 डिग्री का एंगल है, दो एंगल ये इक्वल प्रूव कर देंगे हम। वहां हमें इसकी साइड दी हुई थी AB एंड AC इक्वल, लेकिन अब हमें क्या दे दिया, ये एल्टीट्यूड्स इक्वल दे दिए। तो अगेन हमारे पास एक साइड है जो कि इक्वल है, इससे हम इजीली इसको कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ABE एंड ACF
First point is BAE angle and angle CAF. This is a common angle. ये वाला angle. Okay. And next angle is angle AEB and AFC. ठीक है. AEB ये वाला एंगल एंड AFC ये वाला एंगल दोनों 90 के हैं, राइट एंगल हैं, जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है. ये मैंने दे रखा है ना एल्टीट्यूड से. एंड BE is equal to CF. ये BE एंड CF ये एल्टीट्यूड हमें इक्वल दे रखे हैं ऑलरेडी क्वेश्चन में. एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से अगेन हम कह सकते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABE एंड ACF बोथ आर कॉन्ग्रुएंट. ओके. इसका सेकंड पार्ट देखिए हम, AB is equal to AC. अब ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल, इट मींस इनकी ये साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी बाय CPCT रूल. You can easily write that AB is equal to AC by the rule of CPCT. और अगर ये साइड इक्वल है तो हम इजीली कह सकते हैं ABC is an isosceles triangle. Okay. Question number 5. ABC and DBC are two isosceles triangle. देखिए यहाँ पर ABC and DBC ये दो ट्रायंगल हमें दिए हुए हैं और दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं. ऑन द सेम बेस BC, उनका बेस भी जो है सेम है, BC कॉमन बेस है. ओके. शो दैट एंगल ABD इक्वल टू ACD. अब हमें इस एंगल ABD इसको इक्वल प्रूव करना है ACD, इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे A to D. A से D तक हमने एक लाइन ड्रॉ किया है. ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ हमें टू ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, ABD एंड ACD. अगर हम इन ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर देंगे, इट मींस इनके ये एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. ओके. So now in triangle ABD and ACD, ABD and ACD, यहाँ पर सबसे पहले हम कौन से पार्ट को इक्वल बता सकते हैं, AB is equal to AC. AB is equal to AC ये हमें गिवन है क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल साइड हमें इस फिगर में हमें दे रखी है. AB is equal to AC यानी इस ट्रायंगल की ये साइड AB इस दूसरे ट्रायंगल की साइड AC के इक्वल है. ओके. BD इज इक्वल टू CD ये भी हमें गिवन है क्योंकि ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, DBC. यहाँ पर BD एंड CD ये दोनों ही साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं. तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड भी इक्वल होगी. ओके. एंड AD ये जो हमने जो लाइन ड्रॉ की थी, ये AD एक कॉमन साइड है दोनों ही ट्रायंगल की. ये कॉमन है, साइड साइड साइड, ट्रिपल SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम इनके कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर सकते हैं. ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD. एंड नाउ बाय CPCT रूल वी कैन इजीली से एंगल ABD एंड ACD बोथ आर इक्वल, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं हम. क्वेश्चन 6 इज ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle. Here ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Here AB and AC are equal. Side BA is produced to D. अब साइड BA को प्रोड्यूस किया गया, आगे तक बढ़ा गया, कहां तक, D तक. ये देखिए सच दैट AD is equal to AB. लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो AD है और वो AD जो है ये साइड, ये इस AB के इक्वल है, यानी इस AB की लेंथ के इक्वली हमने D तक इसको बढ़ाया गया है. शो दैट एंगल BCD, एंगल BC, अब यहाँ भी इसको हम ड्रॉ कर देते हैं. तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ये BCD, ये वाला एंगल, इस एंगल को हमें बताना है कि दिस एंगल इज अ राइट एंगल. कौन सा एंगल है, BCD इज अ राइट एंगल. हमें ऐसा प्रूव करना है, इक्वल टू 90. ओके. सो नाउ इन ट्रायंगल ABC,
अब हम ट्राइंगल ए बी सी की बात करें तो इस ट्राइंगल में एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल कौन सा एंगल, एंगल बी, ये किसके इक्वल होगा, ए सी बी, ए सी बी के इक्वल होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इक्वल साइड्स होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल हैं वो भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए हमने लिखा है एंगल ए सी बी एंड एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं, ओके। इसके साथ देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी, सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी, हमने ए डी को कितना आगे बढ़ाया था, ए बी के इक्वल। तो हमने कहा था कि ए बी एंड ए डी क्या है, ये इक्वल हैं, ओके। एंड हम जानते हैं कि ए बी एंड ए सी आर ऑल्सो इक्वल, क्यों, क्योंकि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसलिए ए बी और ए सी इक्वल हैं। ए बी ए डी के इक्वल है और ए बी ए सी के इक्वल है, इट मीन्स वी कैन से ए सी एंड ए डी आर ऑल्सो इक्वल। तो हमने इसको यहाँ रख दिया है ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये ए बी ए डी के इक्वल है एंड ए बी ए सी के इक्वल है, इट मीन्स ए सी एंड ए डी भी आपस में इक्वल होंगे, ओके। नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी, अब हम इस ट्राइंगल ए सी डी की बात करेंगे तो यहाँ पर अब ये साइड इक्वल होगी। देखिए अगेन ए सी डी, ये जो ट्राइंगल है ये भी कैसा ट्राइंगल हो गया, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए डी और ए सी इक्वल साइड्स हैं। सो एंगल ए सी डी एंड ए डी सी, अगेन ये जो एंगल है ए डी सी एंड एंगल ए सी डी, बोथ एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, क्योंकि ये इस आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स, जैसे यहाँ पर इक्वल थे ना, जैसे ये एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, क्योंकि आप जानते हैं किसी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। तो हमने यहाँ पर वही लिखा है एंगल सी ए बी, ये वाला एंगल, या बी ए सी बी आप इसको लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है ए सी बी, ये दूसरा एंगल, और तीसरा कौन सा है, ये बी, यानी ए बी सी। इन तीनों एंगल को हमने इक्वल टू 180 लिखा है। अब देखिए ए सी बी एंड ए बी सी, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ये बी और सी जो एंगल थे इस ए बी सी ट्राइंगल में ये इक्वल है, क्योंकि हमने इसको यहाँ स्टार्टिंग में मेंशन किया इस जगह पर। देखिए आप ए सी बी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए बी सी। अगर ये इक्वल है तो इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए सी बी को हम, ए बी सी को हम अगेन ए सी बी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो ए सी बी है ही सही, ए बी सी किसके इक्वल है, ए सी बी के। तो हमने इसको किससे रिप्लेस किया, ए सी बी, ये भी ए सी बी है और ये भी ए सी बी है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 2 सी ए बी एंगल को हमने एज इट इज लिखा है, ओके। तो यहाँ पर हमें ये सी ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हम इस 2 एंगल ए सी बी, प्राइस ऑफ एंगल ए सी बी को हम जब इस राइट साइड में लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस प्राइस ऑफ एंगल ए सी बी। यहां से हमें ये इक्वेशन 1 मिल जाती है। सिमिलरली इसी मेथड को अगर हम इस ट्राइंगल ए सी डी पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ भी ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं, ए सी डी एंड ए डी सी। तो इस जगह पर अगर हम एंगल सी ए डी यानी इस एंगल को लिखना चाहें तो ये भी क्या होगा, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी, जैसे हमने यहां लिखा था इस एंगल के लिए। कौन सा एंगल, सी ए बी। इस एंगल की वैल्यू को हमने क्या लिखा था, 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, यानी ए सी बी। इस एंगल के डबल को हमने 180 में से सब्ट्रैक्ट किया तो इसकी वैल्यू निकली। तो सिमिलरली जब हम यहाँ करेंगे इसी चीज को, ठीक है, तो यहाँ पर सी ए डी, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी,
ठीक है, क्योंकि ACD एंड ADC दोनों ही इक्वल हैं, तो हम ADC की जगह क्या लिख सकते हैं, ACD, प्राइस ऑफ ACD। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इसी स्टेप्स को सेम एज इट इज आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये इजीली मिल जाएगी चीज। ओके, इसको हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है। अब हम दोनों ही इक्वेशंस को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को। इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, CAB एंड CAD, ये तो लेफ्ट साइड पर है, ऐड हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 360, माइनस ट्वाइस ऑफ ACB एंड माइनस ट्वाइस ऑफ ACD। यहाँ इनको हम एज इट इज ऐसा लिख देंगे। ओके, अब देखिए एंगल CAB एंड CAD, CAB एंड CAD ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पर ये दोनों एंगल जो होंगे इनका टोटल, यहाँ पर यही तो होता है CAB एंड CAD, CAB एंड CAD, इन दोनों ही एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या होंगे, 180 के होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल हैं, या इसको लीनियर पेयर कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे 180, यानी इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, CAB प्लस CAD को 180 डिग्री से रिप्लेस कर दिया। 360 एज इट इज लिखा है हमने। ट्वाइस ऑफ ACB एंड ट्वाइस ऑफ ACD में से हमने 2 को कॉमन ले लिया है, ठीक है। -2 को हमने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर एंगल ACB प्लस एंगल ACD, माइनस कॉमन लिया इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इस चीज को आप अच्छे से जानते होंगे। ओके, हमने चाहे तो यहाँ पर साइड में मेंशन कर सकते हैं कि CAB एंड CAD बोथ आर लीनियर पेयर। इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं आगे अब, क्योंकि यहाँ पास दो वैल्यू है 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। आप इस चीज को उधर लेकर आ जाएं तो 180 को उधर लेकर आ जाएं, मींस ट्वाइस ऑफ एंगल ACB प्लस ACD इक्वल टू 360 में से 180 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 180 डिग्री। अब ACB प्लस ACD देखें आप, ACB यानी ये वाला एंगल, इसमें किसको ऐड कर रहे हैं हम, ACD, इस एंगल को। तो इन दोनों ही एंगल को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एंगल BCD, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है हमने, ठीक है। ACB एंड ACD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये BCD। तो नेक्स्ट स्टेप में हम जो इनका सम था इसको हम BCD से रिप्लेस कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे हम इसको 180 को हाफ कर देंगे, इट मींस 90 डिग्री। नाउ एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट मींस 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, राइट एंगल। तो हमें यही प्रूव करना था कि एंगल BCD इज अ राइट एंगल, हमें इस एंगल को प्रूव करना था। इसलिए हमने देखिए बच्चों यहाँ पर जो ACB और ABC था, यानी ये जो दोनों एंगल थे इक्वल थे, हमने ट्वाइस ऑफ एंगल ACB लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पर लास्ट में क्या करना है, इनका टोटल ही करना था, हमें इससे काम नहीं था। यहाँ हम अगर ACB प्लस ABC को ट्वाइस ऑफ ABC भी लिख सकते थे, लेकिन हमारा वहां से पर्पस सॉल्व नहीं होता, क्योंकि हमें तो इस पॉइंट पर आना था। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी हमने क्या किया, ट्वाइस ऑफ एंगल ACD ही लिखा था, ट्वाइस ऑफ एंगल ACD, कि हमें लास्ट में इनको ऐड करके इस BCD एंगल को फाइंड करना। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर आपको समझ में नहीं आया तो उस वीडियो को आप पॉज करके एक बार वापस से रिपीट करके देखें, तो आपको इजीली समझ में जाएगा, और साथ ही साथ अपनी कॉपी में भी एक बार इसको करके देख लें एक बार। ओके स्टूडेंट्स, question number 7, ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC. Find angle B and angle C. This is triangle ABC. It is a right angle triangle, and here angle A is 90 degree, it is given, and AB and AC is also, these sides are also equal. Okay, and we have to find the value of angle B and C. You know students, since AB and AC are equal, it is already given. आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल B एंड एंगल C आर इक्वल। एंड वी नो इन ट्रायंगल ABC, अब ABC के तीनों ही ट्रायंगल्स को हम ऐड कर दें, एंगल A तो हमें पता है 90 का है, B और C को भी अगर हम
साथ में ऐड कर दें तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों ही एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हमें पता है कि B एंड C आर इक्वल, सो वी कैन इजीली रिप्लेस C विद B। कि हम B और C इक्वल हैं तो C की जगह हम B भी लिख सकते हैं। इट मीन्स B प्लस B कितना हो जाएगा 2B, एंगल A कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इस 90 को अगर हम राइट साइड लेकर जाएंगे तो 180 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इट मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि इस 180 में से 90 तो सब्ट्रैक्ट हो चुका है। ओके, नाउ एंगल B विल बी इक्वल टू 90 अपॉन 2 दैट इज 45 डिग्री। इस 90 का हम हाफ कर देंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। इट मींस एंगल B कितना मिला 45। तो एंगल B और एंगल C क्या है इक्वल है ये। इट मींस एंगल B एंड एंगल C both are of 45 degree. So this is our answer. Now last question is question number 8. Show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each. You know, equilateral triangle is the triangle having all three sides are equal. इसकी तीनों ही साइड कैसी होती हैं इक्वल होती है। और हमें प्रूव करना है कि उसका जो भी एंगल है, जितने तीनों एंगल्स हैं वो कितने के होंगे 60 डिग्री ईच। ओके, सो लेट ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है ABC। यहाँ पर तीनों ही साइड AB, BC एंड AC, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल हैं। ओके, साइड BC इक्वल टू AC इक्वल टू AB। ओके, बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज ऑल इक्वल साइड्स। और इस रूल को आप अच्छे से जानते हैं इसे कि इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर हम बात करें AB एंड AC की तो यहाँ पर एंगल B एंड C क्या होंगे इक्वल होंगे। अगर हम साइड AB एंड BC की बात करें कि दोनों इक्वल हैं, इट मींस एंगल C और एंगल AB क्या होंगे इक्वल होंगे। इट मींस इसके तीनों ही एंगल कैसे होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है, BC के इक्वल है, CA के इक्वल है, AB के इक्वल है। इट मींस तीनों ही एंगल्स आपस में इक्वल होंगे क्योंकि सभी साइड्स इसकी इक्वल है। सो वी कैन से एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। ओके, अगेन हमें पता है कि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। मींस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों ही इक्वल है तो हम B और C को किससे रिप्लेस कर सकते हैं एंगल A से। मींस B और C की जगह हम क्या लिख सकते हैं एंगल A। इट मींस एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A मींस साइज ऑफ एंगल A। ओके, 3 से हम 180 को डिवाइड कर देंगे तो एंगल A कितना मिल जाएगा हमें 60 डिग्री। और एंगल A किसके इक्वल है B और C के भी। इट मींस वी कैन से एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। ये सभी एंगल्स कितने के होंगे 60 डिग्री के होंगे। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको सभी कुछ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग आराध्यांस ट्यूटोरियल हब।